Good morning, ninth standard, and today we come up with another one topic, that is the separating the components of mixture, which is a very important topic, beta. And actually, this topic is not included in your syllabus, but even though I'm going to discuss this topic, and the reason behind it is that it is a very important topic. Fine. So we are going to take this topic and we will do study of this, and definitely it is to be asked in your exams also. So just go through the topic very carefully and listen it, and try to understand it. ठीक है बच्चे? So separating the components of mixture क्यों important है? So as all of you know that in our home also many times we have seen that many pulses, by mistaken your mother just mix the one or two pulses or with each other, and then after that she says, oh, what happened this. uh, so how we can separate those pulses? So it depends upon their color, it depends upon their sizes of the pulse, it depends upon the shape of the pulses. It is very easy कि अगर उनका साइज, शेप, कलर डिफरेंशिएट हो रहा है तो आप उसको हैंड पिकिंग मेथड से क्या कर लें, अलग कर लें. ठीक है? तो जनरली हमने देखा है कि हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस जो अवेलेबल हैं, चाहे वो पल्सेस हैं, चाहे हम चावल खरीदने जा रहे हैं, राइस खरीद रहे हैं, चाहे हम फ्लोर ले रहे हैं आपका, that flour is also not pure one. It also consists of choker, which your mother is sieve before using the flour and before preparing the dough of flour to prepare a chapati, है ना? So that is the methods. There are the different separating methods by which we can separate these substances from a mixture, and we bring it the particular one substance for our यूज. तो हम उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली सेपरेट कर सकते हैं, बट यस दैट सेपरेशन makes, or that separation depends upon the type of the component present in the mixture. कि पहले वो मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है वो बहुत डिपेंडिंग करता है, उनका साइज कैसा है, उनका नेचर कैसा है, एंड वो heterogeneous mixtures जो हैं आपके, sometime it can be the heterogeneous mixture, or sometime it may be possibility that such a mixture can be of homogeneous mixture. जैसे कि मैं अगर बात कर देती हूँ आपकी alcohol plus water की, so alcohol plus water is ethanol plus and water. अगर इन दोनों को ले रहे हो तो that is a होमोजीनस मिक्सचर. बट अगर हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट पल्सेस की, या राइस में जो आपके छोटे ग्रेवल्स होते हैं, that is present, so these can be easily separated by a very simple method, that is a hand picking. जैसे मैंने कहा choker is present in your flour, that can be separated by the sieving method, or tea, आपके घरों में चाय यूज होती है, so your mother or myself also that filtered the tea. So tea leaves can be separated from the tea, and we bring our tea in our use. So that is the filtration method, and we are using these methods in our day to day life. Even आपकी ममा क्रीम इकट्ठा करती है या मिल्क लेती हैं, और मिल्क को जब सेंट्रीफ्यूग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग से छोड़ो, हम एक सिंपल मेथड कहते हैं, मिक्सी में अगर आप उसको रोटेट करते हो, then cream just gets comes out and deposited at the upper one surface. So that method is also used, this method mixer में यूज किया गया. सो या हैंड मिक्सिंग, हैंड ग्राइंडर यूज लिया गया. सो इन मेथड से हमने क्या किया, वी कैन सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क. सो बेटा इन्हीं सब मेथड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. पहला मेथड जो है आपका इसमें जो दिया हुआ है, दैट इज अ हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और अ ब्लैक इंक. This is your evaporation method, or evaporation basically is used to separate out the uh, one substance
which is completely dissolved in a liquid. Like evaporation is used to separate the sodium chloride या salt कहते हैं from water, which is completely a solid, which is completely soluble in water or in a liquid. और हम कहें कि dye, a colored dye is dissolved in water from तो जैसे इसमें लिखा हुआ है colored component जिसे कि आप dye कहते हैं फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, उसको सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड लेते हैं. अच्छा, इन सब मेथड्स में सबसे पहली चीज़ बताऊं, जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. पहला, मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, उस मेथड का प्रिंसिपल क्या है, वही मेथड उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्यों यूज किया जा रहा है. सो डेफिनेटली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ दैट, कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है उस मेथड के पीछे. ठीक है. देन उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और उस मेथड की एप्लीकेशंस कहाँ है, वो मेथड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स मीन, अगर सपोज मैंने इवेपोरेशन किया है तो इवेपोरेशन के एग्जाम्पल्स क्या है, जैसा कि पहला तो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, कलर्ड कंपोनेंट, डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. और सेकेंड अभी मैंने बताया डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, उसको भी इवेपोरेशन से करते हैं. लाइक सी इवेपोरेशन, सी वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होता है, और जो भी वाटर साइकिल फिनोमिना है वो तो सारा का सारा इसी मेथड पे बेस्ड है. ठीक है. So that is also the another one example of evaporation method. When it is to be used, as I have told you, when a solid substance is completely miscible in a liquid, then it can be used, evaporation method. So, and what is the process, उसका मेथड का प्रोसेस जो कि आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है. सो बेटा इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रिंसिपल पे आते हैं, उसका एग्जाम्पल पे आता है, उसकी एप्लीकेशन पे आता है, मेथड कब यूज किया जाता है वो आता है, और डायग्राम्स विद प्रोसेस. ठीक है. तो हम इसी तरीके से इसको तैयार करेंगे. तो जैसा मैंने एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, अब उसने कहा है हम फटाफट इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर हम एक इंक लेते हैं, कलर्ड इंक ले ली, ब्लू इंक ले ली, ब्लैक इंक ले ली सपोज आपने, या ब्लू इंक ले ली, एंड यू जस्ट पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास. ये आपकी वॉच ग्लास है, इसमें आपने उसको लिया और उसको वॉच ग्लास को आपने एक बीकर के ऊपर रखा. बीकर जो है वो दैट शुड बी फिल्ड विद द हाफ बीकर विद वाटर, एंड यू स्टार्ट हीटिंग दैट वाटर. ठीक है. आपने उसको स्टार्ट कर दिया हीट करना. देन ग्रेजुअली यू विल सी कि जो ये डाई है इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, इसमें से जो पानी है वो इवेपोरेट होने लगेगा. एंड एट लास्ट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम दैट द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जितना भी वाटर होगा वो सारा इवेपोरेटेड हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ सोल्यूट बच जाएगा. सॉल्वेंट वाज वाटर, तो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया और क्या बचा आपका, सोल्यूट बचा. और वो सोल्यूट क्या था बच्चे, वो सोल्यूट था आपका रेसिड्यू ऑफ इंक. जो वो इंक रह गई वो एज ए रेसिड्यू या वो एज ए सोल्यूट यहाँ पे बची आपकी. एंड इससे हमें पता चला दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. और इसकी प्रिंसिपल क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट, volatile component can be separated from non-volatile solute by the method of evaporation. So when evaporation can be applied, yeah, what type of a mixture can be separated by the evaporation, when there is a volatile solvent and non-volatile solute is present. क्या बोल रही हूँ ये ध्यान रखिए, non-volatile solute and volatile solvent. Volatile solvent, water is a volatile solvent. Volatile मतलब बेटा जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाए, अपनी स्टेट को चेंज कर दे लिक्विड से गैसियस में, दैट इज योर वॉलेटाइल. लाइक एसीटोन, स्पिरिट हाथ पे लगाते हो, स्पिरिट जो सिस्टर आपके इंजेक्शन लगाने से पहले जो हाथों पे लगाया जाता है, दैट इज स्पिरिट. आपने ऑब्जर्व किया होगा वो अपने आप ही गायब हो जाता है कुछ टाइम बाद. वो कहते हैं ना डोंट रब इट, वो डिप करके देते हैं एक लिक्विड में और उसको लगाते हैं और कहते हैं रब नहीं करना, छोड़ दीजिए. And after some time you see that the cotton becomes dry. So that is a volatile liquid, acetone. Nail polish remover,
थिनर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, पेंट्स में भी यूज किया जाता है, तो दैट इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. सिमिलरली वाटर इज ऑल्सो अ वॉलेटाइल लिक्विड, नॉट अप टू दैट हाई एक्सटेंट, बट येस इट इज अ वॉलेटाइल. इफ यू हैव सीन ऑब्जर्व्ड, आप वाटर को एक बाउल में खुले में छोड़ दीजिए, आफ्टर सम टाइम यू विल सी the volume of water get decreases. Why? Because it gets evaporated. After some it gets evaporated, ठीक है. तो दैट इज, तो हमने कहा जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपका मिक्स किया हो, जैसे कि NaCl, सॉल्ट आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो सॉल्ट गेट्स बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय द एवेपोरेशन मेथड. या इंक में, इंक का जो रेसिड्यू था, जो डाई थी, वो आपकी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट थी, और जो बाकी का लिक्विड था वो वाटर था, तो वो इवेपोरेट हो गया. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट मेथड पे आ जाता है बेटा. ये मेथड क्लियर हो गया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड. दिस इज बेसिकली नोन एज द सेंट्रिफिकेशन मेथड एंड वी यूज इट इन सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. हम, अच्छा हाँ, पहले वाले मेथड की एप्लीकेशन बेटा सिंपल वाटर साइकिल है आपकी. आपके किस मेथड की एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ? इवेपोरेशन मेथड की. और अब अगर हम क्रीम वाले की करते हैं, तो इसमें जैसे कि आजकल आपको मालूम है फुल क्रीम, टोन, डबल टोन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पॉली पैक्स या टेट्रा पैक्स आते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप का मिल्क, डिफरेंट percentage composition of cream present in the milk is available in the market. and अगर हम उसमें से क्रीम को फुल क्रीम मिल्क में से अलग करना चाहें और उसको टोन्ड में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम कर सकते हैं एट होम ऑल्सो. हम उसको क्या कर लें, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसमें कि आपने उस मिल्क को रखना है, एंड यू जस्ट सेंट्रीफ्यूज इट फॉर द 2-3 मिनट्स. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द लैब्स. और अगर आप सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं, तो हमारे घर की मिक्सी और वॉशिंग मशीन इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन दिस प्रोसेस. दोनों ही इसी पर काम करती हैं हमारी. और हम इसको मिल्क चर्नर हमारे घर में होता है, हाथ से जो आपका उसको, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है बेटा. तो जो हैंड ब्लेंडर होता है, उससे भी आप उसको मिल्क को चर्न कर सकते हैं. और हमारा मिक्सी में, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मिक्सी में कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो यूज इन द किचन. डेयरी में अगर आपने देखा हो, या घरों में लेडीज़ जो होती हैं, वो हैंड से ही उसको चर्न करती चलती हैं, एंड दे गेट्स सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम बाय चर्निंग देयर हैंड इन अ बाउल. बहुत बड़े बाउल में इस तरीके से चर्न करती हैं, तो वो बटर भी सेपरेट कर लेती हैं, किससे? क्रीम से. So these are the different methods by which we can separate cream from milk, or we can say cheese or butter from the cream. ठीक है, तो वो निकाल लिया जाता है. So when this process is used, simply this is the method which is to be used when the solid particles in a liquid present are very small. ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, बट इतना ज़्यादा भी ना हो कि हम जब हम मतलब फिल्ट्रेशन टेक्निक ना कर पाए, इतना छोटा हो पार्टिकल. फिल्ट्रेशन टेक्निक में बेटा अगर आप दूध छान भी लोगे तो क्रीम आपकी अलग नहीं होगी. ठीक है, तो उसके लिए व्हेन फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड एंड द पार्टिकल साइज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, देन वी कैन यूज दिस मेथड, and that is, then such type of a mixture can be separated by centrifugation. So basic principle for this method is that the denser particles are forced to be settled at the bottom and the lighter particles stay at the top. ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल टॉप पे रहेंगे और डेंसर पार्टिकल्स हमारे क्या होंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस. जैसा मैंने पहले बताया था, बहुत ज़रूरी है. जितने भी ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं बेटा, उनके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज़ की जाती है. और आपको मालूम होना चाहिए ब्लड या यूरिन दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब इनके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स वाले पार्टिकल्स जिन्हें कि आपने डायग्नोस करना होता है, वो प्रेजेंट होते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और वो पार्टिकल्स जो हैं आपके टॉप पे आ जाते हैं और लिक्विड नीचे रह जाता है. तो वहाँ से हम उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है,
This is also used, as I have already told you, to dairies to separate butter from cream, and it is also used in the washing machine. आपका जो ड्रायर वाला टब होता है, अगर आपकी सेमी वॉशिंग मशीन है, so ड्रायर टब जो होता है, that used also this application to squeeze out the water from wet clothes. गीले कपड़ों में से पानी सुखा देता है ना, बिल्कुल पानी को निकाल के बाहर कर देता है और कपड़ा आपका ड्राई होकर के आता है. तो that is also a centrifugal machine, means it's based on the centrifugal machine principle. Next is there, how can we separate two immiscible liquids? दो immiscible liquids like oil and water, अगर ये हैं तो हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं? So we can separate them with the help of separating funnel. बेटा this is known as a separating funnel. इसे हम separating funnel कहते हैं. ये apparatus आप लोगों को मैं अलग से भी दिखा दूंगी. ये वाला this apparatus is known as a separating funnel. It is available in the labs और इसकी शेप ऐसी होती है, ये ग्लास का बना हुआ होता है, ये ऊपर से ब्रॉडर होता है और नीचे जाके नैरो हो जाता है. ठीक है. इसमें we just put a mixture of two immiscible liquids. हम अगर इसके अंदर दोनों immiscible liquids डाल देते हैं, लाइक हमने ऑयल और वाटर डाल दिया, एक बीकर में लिया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया, स्टर किया, मिक्स किया, एंड देन वी पोर इट इनटू इट. ठीक है, ये स्टॉप कॉक होती है इसकी, इसको हम क्या, सॉरी, दिस इज द स्टॉप कॉक. यहाँ से ये ओपन और ऑफ होता है. ठीक है, अब आप इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और ऊपर से लिड को इसके हटा दीजिए. ठीक है, नॉब को, इसके इस लिड को क्या करेंगे, हटा दीजिए, एंड देन pour the liquid in this separating funnel, and then after that just shake it once. इसको क्या करना है हमें बेटा, शेक करना है like this. आपने पकड़ा separating funnel और फिर उसे शेक किया. ठीक है, and then keep it stand for a 2 minute. 2 मिनट का वेट कीजिए undisturbed के लिए, so that the layers of different liquids that get separated out, and then ओपन द स्टॉप कॉक फ्रॉम हेयर. इस स्टॉप कॉक को यहाँ से ओपन कीजिए और फिर लोअर लेयर को पहले पोर करिए. एक बीकर लीजिए खाली, उसके नीचे आप अपने सेपरेटिंग फनल के नीचे यहाँ पे बीकर लगाइए. ठीक है, और इसकी नॉब को, स्टॉप कॉक को ओपन कीजिए और फिर आप देखेंगे कि पहली लेयर जो कि लोअर लेयर है उसको नीचे आने दीजिए. तो पहली लेयर में आपका वाटर आएगा, बिकॉज इट इज द हेवियर वन. सो द हेवियर लिक्विड दैट गेट्स goes down and forms a lower layer, whereas the lighter जो भी liquid होगा that goes the upper one and forms the upper one layer. आपने first lower layer आपने ली और इस पहले बीकर में आपने वाटर को कलेक्ट करा and just close the knob of the stop cock once the whole water gets poured in the beaker, and then after that take the another one beaker और दूसरे बीकर में next liquid को आप कलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, so from here we can say the principle basically beta of this is that it separate mixture of oil and water. It is also used to extract iron from its ore. हम उसे blast furnace में करते हैं. blast furnace एक बहुत बड़ी भट्टी टाइप की होती है और उसके अंदर ये पूरा आयरन जो होता है वो मोल्टन फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो जो लाइटर स्लैग होता है, स्लैग इज योर अनवांटेड पार्टिकल्स, तो वो जो होता है लाइटर स्लैग जो होगा वो ऊपर आ जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, और जो हेवियर मोल्टन स्टेट में आपका आयरन होता है वो नीचे की लेयर में होता है. और बेटा ब्लास्ट की शेप जो होती है, ये भट्टी होती है, दैट इज नॉट ऑफ अ ग्लास एपरेटस, इट इज मेड अप ऑफ द मेटल्स. ऑब्वियसली क्योंकि मुझे मोल्टन आयरन लेना है तो उसके लिए खुद का टेम्परेचर उस ब्लास्ट फर्नेस का बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. तो but इसकी शेप भी इस ब्लास्ट की भी, it just look like a separating funnel, not exactly like a separating funnel, but yes it resembles like a separating funnel. और उसमें भी नीचे की जो हेवियर मोल्टन आयरन की बॉटम सरफेस होती है, लोअर लेयर होती है, उसको फर्नेस से बॉटम से नीचे अलग कलेक्ट कर दिया जाता है, और जो स्लैग होता है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर की लेयर में रह जाते हैं. ठीक है, इसका प्रिंसिपल बेटा मेथड का ये है दैट टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेटेड आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. इसके लिए जरूरी है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स की डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा.
सो दैट कि एक अपर लेयर और सो दैट कि एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर फॉर्म कर पाए। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये यहाँ तक? सो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वी विल डू in the another one class. So today we learnt about the three methods. The first one is evaporation, the second one is your centrifugation, and third one is separating funnel. Through separating funnel, तीनों के प्रिंसिपल, तीनों की एप्लीकेशंस, तीनों के एग्जाम्पल्स, तीनों में कब कब यूज किए जाते हैं, when it is to be used, that we have learned. So just go through that and again read it from your NCERT book. Thank you.